Welcome to all India largest online platform, that is Unacademy and Wi-Fi study here. Today we are going to start here 100 series of best question here. Miss important question. About me, this is Atul Prajapati, BTech and MTech from NIT Allahabad. I have 7+ year teaching experience in GATE, SC and PSU. 6 time GATE qualified with a good rank and taught 200+ batches for GATE, SC in reputed coaching in all over the India. And I have also taken many special grade classes. One of them university is Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology in Andaman Nicobar, Iceland. And I have also 2 year teaching experience in Bir Bahadur Singh Purvanchal University, work as a assistant professor here. Suppose you are interested for an academic subscription, then यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? पहले आप स्टेप कर सकते हो कि इसका पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज की बात करूं तो आप किसी से भी स्टडी कर सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो 98%, 99%, लाइव डिस्कशन कर सकते हो किसी से भी। कुछ भी डाउट हो तो आप सिंपली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बात करें स्टेप थर्ड की, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट ईएससी, देन यू हैव टू सेलेक्ट हियर। ओके, देयर आर 9942 वीडियोस अवेलेबल हियर, कोर्सेज अवेलेबल। ओके, स्टेप 4, suppose you are interested for plus subscription, then you can take here as there is free courses as well as special classes is there here. And step 6 is suppose you are in second year or third year, then I recommend you can take here for 24 month. And suppose आप फोर्थ ईयर में हो या पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, then 12 month is sufficient for you here. And debit credit card option is also available, EMI option. Suppose you have some financial problem, then you can apply here EMI option. UPI wallet and net banking option is also available here. When you taking the subscription here, just apply the code here APP10. APP10, you will get here maximum discount here. You will get here maximum discount here. For 12 month that is 22,500 and for 24 month that is 27,000. Okay. Yeah. दिस वन इज द क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चन होंगे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसको कैलकुलेट ऐसा नहीं कि मुझसे देखते रहना और जब तक मैं सॉल्व ना करूँ आपको नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी करो। जब तक आप अपने अकॉर्डिंग माइंड पे वो नहीं प्रेशर दोगे तब तक कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कुछ कई टेस्ट सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोगों ने मिस्टेक किया था, उसी को मैंने क्वेश्चन लिखा था। ब्रेकअवे पॉइंट ऑफ द रूट लोकस रियल एक्सिस इज क्लोज लूप वाइज क्लोज लूप सॉरी the loop system with loop gain is gs equals to given here k s plus 10 s plus 2 s plus 5 lies. Means we have to find the breakaway point. First we have to indicate the pole 0. First 0 is pole is located at where? Pole is located where? First pole is located at -2 and second pole is located at -5 and third 0 is located at -10. Okay. What we have to find here breakaway point. Then breakaway point is where? कहाँ पे breakaway point create होता है? जब एक root locus से, हमेशा देखो root locus start from open loop poles and terminate at finite open loop 0 here, ठीक है। इनका 0 नहीं तो वो कहाँ पे terminate हो जाएगा? जाके infinite पे terminate हो जाएगा। मीन्स ऐसा assumption लिया जाता है कि 0 जो है कहाँ पे? infinite पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, यहाँ से जो एक रूट ऐसे जाएगा, एक यहाँ पे, क्योंकि इस साइड जा नहीं सकता क्योंकि ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे सेगमेंट देखेंगे तो इस साइड कितने इवन है, तो ये पार्ट नहीं हो सकता। ये इस साइड ये भी नहीं हो सकता तो ये इस साइड आएगा। दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेकअवे पॉइंट क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? ब्रेकअवे पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन अभी करा दूंगा मैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अभी करा दूंगा कैसे सर्किल बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से समझ पा रहे हो कि क्या पूछा है? ब्रेकअवे पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इजी क्वेश्चन, दिस वन इज द ब्रेकअवे पॉइंट। अभी एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा मैं, ठीक है। अ सिस्टम विच ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन या सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट 10 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया, रेज टू 50% ऑफ इट्स हाइट, स्टेप हाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट? देखो इसको सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? c अपॉन r इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से हियर 1 अपॉन टाउ s प्लस 1। Okay. Suppose if I want to find out the response, that is 1 upon tau s plus 1 into s here, 1 by s. Okay. Just do the partial fraction 1 by s plus b upon tau s plus 1. Okay. This is the CS here. Clear? Okay. Just do the partial fraction.
एस को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो क्या होगा, एस से मल्टीप्लाई एस इक्वल टू 0 पुट किया तो ए इक्वल टू क्या आ चुका है 1 1 एस। व्हाट अबाउट द बी, क्रॉस मल्ट यहाँ पे कैंसिल हुआ तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ चुकी होगी, यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ से एक कैंसिल हो चुका है, यहाँ से एस इक्वल टू पुट करेंगे माइनस ऑफ 1 बाई टाउ, ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाई टाउ दैट इज टाउ एस प्लस 1, क्लियर। यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई टाउ। यहाँ से सिंपली आप समझ पा रहे हो कि क्या आएगा। सपोज मैं यहाँ पे क्या करूँ, टाउ कॉमन करूँ, यहाँ से देखो मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं बी की वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से एस कैंसिल होगा और एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी होगी, 1 आ चुकी होगी। बी की वैल्यू चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे एस इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 1 बाई टाउ, ठीक है। तो हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इसको बी को फाइंड आउट करने के लिए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस टाउ आ जाएगा, तो यहाँ पे टाउ आएगा सर, क्लियर। 1 अपॉन एस प्लस, यहाँ पे हम माइनस लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से टाउ कॉमन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, एस प्लस 1 अपॉन टाउ। This one is, suppose if I want to find out the inverse here, then we can say here e to power what, t upon tau, or t greater than 0 here. Okay, this is the city here. And 50% of this means we are planning the unit step, then 50% of this one is 1 into 50%, that is equals to what, 1 by 2. 1 minus e to power what, e to power 10 upon tau, 10 upon tau. Okay, just simplify here, that is equals to what, 1 by 2 means e to power 10 upon tau, that is equals to 1 by 2 here. Just take the ln here, is antilog. Okay, just find the antilog here. Okay, I need some calculator here. Just find here, वर्चुअल कैलकुलेटर अपना खोलो और उसके साथ फाइंड आउट करो. If I want to find out the ln here, then how we can get? What we are getting? We are getting here, that is 14.4 around. This one is the C. C is the correct here, no problem. C is the correct. आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, इसका बता दो. The frequency response of the system is shown below. Then which one is the correct here? हमें बता दो. हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था C by R equals to what? Omega n square upon S square 2 zeta omega n 2 zeta omega n S plus omega n square. इसका हमने कल बहुत अच्छे से ड्रॉ किया था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले देखो जाके. जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते थे, रेजोनेंट पीक वैल्यू. और ये किस पे होती थी, ओमेगा आर पे. और ओमेगा आर किसके लिए वैलिड था, ओमेगा आर वैलिड था इफ डैम्पिंग रेशियो इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.707. ये ग्राफ तभी आता है जब यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो के वक्त की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0.707 मींस अंडर डैम्प हियर. ठीक है, तो आपको लॉजिक ऐसे लगाना है. यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे मैग्नीट्यूड को. यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि ये रिस्पांस तभी आ सकता है ऐसे व्हेन डैम्पिंग रेशियो इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, 0.707. क्लियर, क्लियर. इफ यू हैव सिंगल डाउट देन यू कैन फ्री टू आस्क, नो प्रॉब्लम. आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो यहाँ पे आप कमेंट कर दो और 100% आपकी डाउट क्लियर की जाएगी. ठीक है, और अगर एक क्रिटिकली डैम्प होता तो ऐसा ग्राफ ही नहीं आता, एक कांस्टेंट हो जाता 1 के लिए. ठीक है, वहां पे हमने क्या बताया था, एम आर इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन 2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर एंड ओमेगा आर इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर. When zeta is greater than 1 by root 2, then mr is what, mr equals to 1 here. Suppose यहाँ पे zeta greater than होता तो ये constant 1 तक होता है यहाँ पे. और यहाँ पे if damping ratio is less than 1 by root 2 means यहाँ पे एक peak occur होगा, that is called as resonant peak here. Okay. Next question. This one is the Bode plot is given here. Bode plot asymptotic minimum phase system shown in figure here. System is connected unit negative feedback. The steady state error of the closed loop system when unit ramp input is applied here.
Means steady state formula is what? Steady state formula is unit amp is applied here, then we can say 1 upon kV here. 1 upon kV here. Clear? Next. Next here, what we can say? If any problem, just ask me. Okay. First, we have to find the what is the slope of this one. This slope is indicate the number of zero present at number of poles present at the origin. Because slope क्या है डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या रहेगा पोल रहेगा क्या रहेगा पोल और यहाँ पे कुछ जीरो सेम अमाउंट से ऐड होगा जितने पोल होंगे उतने ही जीरो ऐड होंगे तभी इसका स्लोप क्या हुआ है जीरो हुआ है अगेन यहाँ से स्लोप क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे जीरो ऐड हुआ और यहाँ पे क्या ऐड हुआ है पोल ऐड हुआ है मीन्स हम बोल सकते हैं अगर जीएस का कुछ ग्राफ बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा कि अपन एस second one pole is 10 is added at s upon 2 again 10 is added 1 plus s upon 10 here clear clear here any problem then you can free to ask no problem ठीक है अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप पूछिए मुझसे कमेंट करिए ठीक है next first we have to find the slope here suppose if I want to find out the slope then what is the formula for slope slope equals to we can say here that is what m2 minus m1 what is the m2 m2 is 0 minus 26.02 upon log of 2 upon 0.1 here suppose if I want to find here that is what calculate करो आप अपने कैलसी में that is 20 log words multiply with 26. Yeah, this one is around to minus 20 dB per decade. This one is around to minus 20 dB per decade here. Means minus 20 dB per decade, then we can say here there is one pole lie at origin. Suppose this one is the minus 40 per decade, then there is two poles lying on the origin. Clear? Means if it is minus 20 dB per decade and slope is goes to 0, means we can say at omega equals to 2, there is one zero is lie at the s equals omega equals to 2. Suppose minus 40 होता तो यहाँ पे क्या करना पड़ता हमें स्क्वायर करना. Clear है? Any problem? Next, what we have to find? We have to find the value of k. How we can find? Just apply the 20 log of k upon omega at omega equals to suppose if I take here omega equals to suppose 0.1 ले लिया मैंने और इस पर मैग्नीट्यूड क्या हो चुका 26.02. Just calculate here. Just calculate here. Just calculate. That is what 26.02 divide 20 antilog. That is around 20. That is around 20. This k upon omega we are getting here 19.99. And if I suppose we are assuming that this one is the 20. And if I want to find out the value of k, 20 into 0.1, that is equals to 2 here. Clear? K we are getting here 2. K we are getting here 2 here. Clear? Again, what is the value of kp here? kv here, limit s tending to 0. That is what? Limit s tending to 0. 1 upon means if I put here s equals to 0, s cancel here. S into k upon s, this one is cancelled and k is 2 here. Okay. 1 plus s, that is 1 upon, that is what? 0. Means kb we are getting here 2. kb we are getting here 2. Clear? If you have single doubt, then you can free to ask here. If you have single doubt, then you can free to ask. One thing is most important here is what? Suppose if slope is minus 20 dB per decade. I am saying that suppose slope is minus 20 dB per decade. If slope is minus 20 dB per decade, or you can say here this one is the type N, type 1. If slope is minus 20 per decade, the type is 1. If slope is minus 40 dB per decade, then type is 2. Clear? Then this one is the ये जो भी पॉइंट जहां पे क्या होगा पूरे प्लॉट कट करेगा डायरेक्ट आप उसी को क्या बोलोगे केवी बोलोगे. ये क्वेश्चन में करा चुका हूं ऐसा. आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है. जहां पे आपका बॉर्डर प्लॉट कट करता है उसी पॉइंट को केवी इक्वल टू क्या बोल दोगे आप 2 बोल दोगे. केवी इक्वल टू क्या बोल दोगे आप 2 बोल दोगे.
ठीक है, मीन्स या कभी भी nth मीन्स यहाँ पे टाइप n हो तो आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू k टू पावर क्या कर दोगे 1 बाई कर दोगे, क्या कर दोगे 1 बाई n, मीन्स इफ इट इज टाइप 1 हियर then n equals to 1 then omega equals to k, if it is type 2 then k equals to क्या हो जाएगा 1 by 2 मीन्स ओमेगा equals to under root of k, मीन्स k equals to क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे सपोज 2 होता और ये क्या होता -40 होता, यहाँ पे क्या कर देते k की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 4 आ जाती है। ये समझ पा रहे होगे कि ये हमेशा ध्यान रखना ओमेगा इक्वल्स टू k टू पावर 1 बाई n, इफ इट इज टाइप n हियर मींस 1 अपॉन s टू पावर क्या हो n हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, सारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आंसर इज 1 बाई 2 दैट इज 0.5 और 50% ऑफ क्लियर। Okay, suppose GS is given here, GS is given here. We have to find the root locus here. How we can draw? Here B is greater than A. तो यहाँ पे क्या होगा, वन पोल इज एट इक्वल टू 0, सेकेंड पोल कहाँ पे लाई करेगा, सेकेंड पोल लाई करेगा माइनस ए पे, और अगेन एक जीरो कहाँ पे लाई करेगा माइनस बी पे, अगेन एक जीरो कहाँ पे लाई करेगा माइनस बी पे लाई करेगा, क्लियर है। ओके, फर्स्ट इफ आई वांट टू फाइंड आउट द ब्रेकअवे पॉइंट देन हाउ वी कैन राइट 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन s प्लस a इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस b हियर। Okay, just solve here. How we can solve? If I want to solve here, then how we can get here the value? फटाफट बताओ कमेंट करके, what is the value of this one? यहाँ पे कैलकुलेट करो थोड़ा सा, जो मेथड बताया था इसको इस साइड ला सकते हो और इसको सॉल्व कर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा s प्लस a प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस as इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन s प्लस b है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2s प्लस a s प्लस b दैट इज इक्वल टू s स्क्वायर as हो जाएगा। यहाँ से आप समझ पा रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2s स्क्वायर प्लस as प्लस 2bs प्लस ab माइनस s स्क्वायर माइनस as दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ से s स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो चुका है, दैट इज 2bs प्लस ab दैट इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी कैन से 2b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो जाएगा 2, यही होगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस वट, 4 कॉमन करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए। ओके, क्लियर। वन पॉइंट इज माइनस बी प्लस प्लस दैट इज प्लस हियर प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए बी, सेकेंड पॉइंट इज माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए बी। One point is what? Breakaway point, and one point is break-in point here. One point is breakaway point and second point is breakaway point here. Which one is the break-in point? ये कौन सा हो जाएगा break-in point हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा जो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये बन नहीं पा रहा होगा लेकिन एक सर्किल की तरह ये कुछ काम करेगा, ठीक है। चलो, मैंने मान लिया सर्किल है, एक सर्किल तरह है मान लो, एकदम 100% सर्किल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बनने में नहीं हो पा रहा होगा लेकिन आपको बस आइडिया होना चाहिए। दिस वन इज द सर्किल हियर, ओके, एंड दिस वन इज द सर्किल हियर। देन यहाँ से अगर आप देख पा रहे होगे तो ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, दिस वन इज द बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड व्हाट अबाउट दिस, यहाँ से आप चेक कर पा रहे होगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, एक ए वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस बी से ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। यहाँ समझ पा रहे होगे तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस इज बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड सेंटर इज वी कैन से हियर माइनस बी, क्लियर, माइनस बी एंड 0, ओके। थोड़ा सा ये बनने में थोड़ा सा उतना इजी नहीं दिख रहा है, मतलब सर्किल तरह नहीं बन रहा है, लेकिन आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ऐसे ही बनेगा।
ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक मेथड और हो सकता है, एंगल ऑफ जी एच इक्वल टू आप सिंपली -180 कर दो और एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट कर दो। ये पूरा सर्किल का इक्वेशन यहाँ से भी क्लियर है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या आ चुकी है, बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड सेंटर इज माइनस बी। अल्टीमेटली देखो ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, हमारा ए था केवल 1/s, एस प्लस ए था, एस प्लस ए था। कैसा बन रहा था, यहाँ पे था, ऐसे गया और ये क्या हो गया ऐसे। जैसे एक जीरो ऐड हुए तो ये क्या हो गया, इस साइड मूव करने लगा। जीरो ऐड करने से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बैंडविड्थ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टाइम कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो राइज टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिस्टम क्या हो रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। क्लियर, क्लियर। एक बार चेक कर लो, क्लियर होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, आपका 100% आंसर है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। इसका हमें रूट लोकस ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका देखते हैं रूट्स कहाँ अप्लाई करा है। मीन्स -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 16 -4ac 5/2 -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 4 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज व्हाट 4 माइनस 5 मीन्स 2 प्लस माइनस व्हाट जे, -2 प्लस माइनस जे वी आर गेटिंग है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई भी सिंगल प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, next what we can say here, 1 upon s plus 1 upon s plus 4 plus 1 upon s plus 2 plus j and plus 1 upon s plus 2 minus j, that is equals to what, 0. Just solve the equation here. इस यहाँ पे s plus 4 plus s करोगे upon s, s plus 4 करोगे। again यहाँ पे आप s plus 2 minus j, again s plus 2 minus j plus j upon क्या हो जाएगा, s plus 2 whole square plus 1, that is equals to what, 0. This one is cancel here, means what we can say 2s plus 4, यहाँ पे भी 2s plus 4 आ रहा है। 2s plus 4 आप कॉमन कर सकते हो, that is equals to 0 and s equals to what we are getting here, s equals to minus, we are getting here -2. क्लियर है, एक पॉइंट आ चुका है। सेकंड पॉइंट भी आप कैलकुलेट करोगे इससे, तो सेकंड पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, s प्लस 2, s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस s स्क्वायर प्लस 4s, दैट इज इक्वल टू 0 हियर। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई हियर। आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक बार सिंप्लीफाई करो, इसको आंसर बताओ फटाफट। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट। देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे जो भी पॉइंट आएगा इसमें, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा तो सबसे पहले देखो, वन पोल इज एट s is equals to -4 and sec last this one is what, -2 plus j -2, यहाँ पे कहीं पे होगा ही, ठीक है, एक यहाँ पे होगा। क्लियर है, देखो इसको डिस्टेंस कितनी, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट होगा, दिस इज -2। क्लियर है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इतनी ये है और ये क्या है, माइनस। क्लियर है, ओके। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें मैंने क्वेश्चन कई सारे करा है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, अगर आप देखे होगे इसकी डिस्टेंस कितनी, यहाँ पे 1 है, इसकी डिस्टेंस भी 1 है, बट इसको कितना डिस्टेंस चलना है, 2, इसको कितना डिस्टेंस चलना है, 2। जब तक ये चलेंगे यहाँ पे आधा पहुंचेंगे, तब तक ये कहाँ पे आ गया, ये अपवर्ड आके एक इस साइड गया होगा, एक इस साइड, दोनों कोलाइड करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द रूट लोकस। ठीक है, और ये सपोज इस पॉइंट को आप फाइंड आउट करना चाहते हो कहाँ पे कट करेगा, तो आप सिंपली वी हैव टू डू द सेम थिंग। क्या करते थे हम वहां पे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4s, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 प्लस के, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। सपोज इफ आई मल्टीप्लाई हियर s टू पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस दिस वन इज 5s स्क्वायर
This one is 4s cube plus 16s square plus 20s plus k, that is equals to what is 0. Means s to power 4 plus 4s cube and 4s cube, that is 8s cube. Next one is what? That is plus 21s square, again plus 20s plus k equals to what? 0 here. Okay, clear? Yeah. This is the condition where margin stable condition means we have to find here d equals to b square e upon bc minus ad. What is the value of d? A b c d e. ठीक है, यहाँ पे d चेक करोगे तो 20, b स्क्वायर इज 64 into k upon bc minus ad, that is what? 21 into 8 minus 20. ओके, यहाँ से सॉल्व कर पा रहे होगे तो आई थिंक हमारे पास k की वैल्यू क्या आ रही होगी? 20. यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर से, तो आई थिंक कितना आ रहा होगा? k की वैल्यू चेक करते हैं पहले. 21 into 8 minus 20 multiply with 20, okay, divide by 60. Yeah, we are getting here k equals to 46.25. And suppose if I want to find out the what point where root locus crosses the j omega axis, मैंने already बता चुका हूँ क्या? Omega pc equals to under root of d by b, means we can say here this is the point. What is the d? 20 and b is 8 here. d is 8 here. तो यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा इसको क्या लिख देंगे? प्लस माइनस जे करके, और यहाँ पे लिख देंगे 20/8. इसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा? कट होके जाएगा. क्लियर है? तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आपको ये सब चीजें पता है और इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो. ठीक है, इफ यू हैव सिंगल डाउट देन यू कैन फ्री टू आस्क, नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्लियर? ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये क्या होगा? यहाँ पे क्या कोफिशिएंट मिसिंग है, तो या इधर मार्जिन स्टेबल होगा, क्या होगा? अनस्टेबल होगा. तो हम ड्रॉ करते हैं s to power 4 s स्क्वायर, दिस वन इज s to power 0, s to power 4 what? S cube, s square, s to power 1 and s to power 0, that is 1 3 2. ये वाला टर्म पूरा 0 हो चुका है, तो हम क्या लिखेंगे? s to power 4 plus 3s square plus 2. ये एक्चुअली इक्वेशन डिफरेंशिएट कर देंगे तो 4 6 and 0. ठीक है, यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हैं, 2 3 से कट कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो गया? 6. यहाँ पे -3 अपॉन क्या हो गया? 2. अगेन 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा? 2. यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आ रहा होगा 3/2. 3/2 आ चुका. इसमें मल्टीप्लाई करो आप तो 3 into 3 9/2 minus 4 upon 3/. क्लियर? अगेन यहाँ पे क्या होगा? 0. यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मिस व्हाट इज वी आर गेटिंग हियर? आप समझ पा रहे हो कि पूरी रो 0 हो चुकी है, पूरी रो क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है. यहाँ से पूरी रो 0 हो चुकी, तो आप क्या कंक्लूड कर पाओगे? फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे. ठीक है, अगर आप लाइव देख रहे हो तो कमेंट कर दो इसमें फटाफट. क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? हमें फटाफट बता दो. अगर सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया? एक्स मान लिया. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0. यहाँ पे x प्लस 2x प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x प्लस 2 आएगा, एक क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 2 और एक आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे जो रूट आएंगे एस स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2j और एक आएगा सॉरी एस इक्वल टू प्लस माइनस, यही आएगा. तो मार्जिन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बोलो. अनस्टेबल तभी होता है जब तक इसमें नंबर ऑफ साइन चेंज नहीं होगा, तब तक हम नहीं बता सकते. तब तक हम इसमें नहीं बोल सकते कि अनस्टेबल है. ये क्या है? मार्जिन स्टेबल है.
और इसके पोल्स चेक करेंगे तो हमारे पोल्स कहाँ पे लाई करेंगे, इसके पोल्स लाई करेंगे एक यहाँ पे जे पे और एक कहाँ पे लाई करेगा माइनस जे, एक लाई करेगा 2J पे, एक लाई करेगा कहाँ पे -2J पे लाई। क्लियर है? एक लाई करेगा 2J पे तो एक लाई करेगा कहाँ पे -2J पे लाई कर जाएगा। ठीक है, रिपीटेड कर जाते हैं तो क्या हो जाता है, दिस वन इज अनस्टेबल। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे देख के आपको लग रहा है एस स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट आएंगे कहाँ पे प्लस माइनस जे और एक और आएगा प्लस माइनस जे, और ये रिपीटेड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, इसका जब आप बनाओगे आर एस कट जाए तो इसमें नंबर साइन चेंज होंगे, 100% साइन चेंज होंगे। ठीक है, क्लियर? चलो देख लेते हैं एस टू पावर 4 एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू पावर 1 एंड एस टू पावर 0। दिस वन इज 1 2 1। इफ आई डिफरेंशिएट हियर वी आर 4 4 एंड 0। ठीक है, आप यहाँ पे 1 1 लिख लो, कैंसिल कर दो सबको 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 -1 अपॉन 1, अगेन मल्टीप्लाई किया मैंने 1 1 हो गया, यहाँ पे क्या चुका 1 आ चुका है। अब इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या चुका 0। ठीक है, यहाँ पे 1 में 1 -1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या चुका है, यहाँ पे तो 0 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2s स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0। अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या चुका होगा 4, यहाँ पे क्या चुका होगा 0, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेट मी चेक हियर, यहाँ पे देखो यहाँ साइन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 and 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 and 1 आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है दिस वन इज 1 to 1 हो गया। नेक्स्ट क्या, हम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो एक्चुअली इक्वेशन वी आर गेटिंग हियर 4 s to power 4 plus 2s square plus 1 here. If I differentiate a dash here, that is 4s cube plus 4s plus 0. यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 4 आ चुका है आपके पास 4 and 4। इसको आप करके डिवाइड करके क्या लिख सकते हो 1 and 1। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चुका होगा, इसमें देखो मल्टीप्लाई करो 1 into 2 that is 2 and -1 upon 1 that is equals to what 1 here। Again if I multiply this one is again down to 0 that is 2s square, this one is what, this one is 1 here, no? Sorry. This one is s square plus 1, if I differentiate here this one is 2 here, this one is 2 and this one is 1 here। Okay, just multiply here 2, okay, 2 minus what, repeat here, this one is if I multiply here this one is what 2 minus 1 upon 1, again this one is 1। Clear? Okay, this one is we can write here 1 here। ठीक है, अब अगेन इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 तो यहाँ पे 0 बाई 0 हो जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 and 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 and 0, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या करो, देखो साइन चेंज नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, साइन चेंज नहीं हो रहा है। इस साइन देखो कहने का मैंने क्या बोला था, मैंने प्रीवियस में क्या बोला तो मुझे नहीं पता, इसको एक बार सुन लो पहले। जब तक यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, जब तक साइन चेंज नहीं होगा तब तक कोई भी पोल कहाँ पे नहीं लाई करेगा, राइट साइड लाई नहीं करेगा। ठीक है, मैंने इसमें बोला था इसमें भी कोई साइड चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स कोई भी पोल कहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, राइट हैंड साइड लाई नहीं करेगा। और जैसे ही साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो कोई साइन चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी राइट साइड नहीं लेकर है, और यहाँ पे भी कोई साइन चेंज नहीं हो तो यहाँ पे भी कोई पोल्स राइट साइड लाई नहीं कर रहा है। जैसे ही एक लाई करेगा यहाँ पे तो एक कहाँ पे लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड लाई करना पड़ेगा। यहाँ का रूट्स देखो आप, एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ चुका है 0, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस जे, और यहाँ से भी आप रूट निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ से भी रूट निकालोगे तो हमारे पास क्या आ चुका प्लस माइनस जे, अगेन प्लस माइनस जे आएगा। मीन्स रिपीटेड पोल लाई ऑन द imaginary axis, this one is make system is to be unstable here। Clear? Means what we can say, what we conclude here, if any sign change in the first column indicate the number of poles present, number of closed loop poles present on the right hand side here।
इस यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मीन्स कोई भी पोल वहां पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये क्वेश्चन था आई थिंक, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज इसने क्वेश्चन हो चुके हैं। आप उसी क्वेश्चन के एक बार थ्योरी देख के आओगे तो ये सारे क्वेश्चन मुझे कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा फास्ट रहा होगा। जब क्वेश्चन की थ्योरी बताया होगा उसमें बहुत डिटेल में मैंने सब कुछ बताया। आप जाके देख लीजिए, कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें से। ठीक है, just join the telegram channel, that is Catix Get EE here, and just apply the referral code here APP10, you will get your maximum discount of 10%। इसके अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लास्ट वन इज द थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।